Hi Dev, good morning. How are you? I'm fine, sir. How are you? Oh, I am doing great. Thank you. Pleasure to see you. So, how the things are? All well? Yes. Okay, that's great. So Dev, just could you give me the recall that what did you learn in last session? आप Which लास्ट time? सेशन में आप लास्ट सेशन में क्या सीखे थे वो मुझे बताएंगे? हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या सीखा था? हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीखा था कि लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें देखा था हमने 9 मंथ्स का प्लान होता है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हर मंथ का, राइट? फिर हमने देखा था प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, राइट? ये व्हाई, हाउ एंड व्हाट हमने आंसर किया था ना लास्ट सेशन में, राइट? ये व्हाई लाइफ कोचिंग, हाउ लाइफ कोचिंग विल टेक प्लेस and what will you get out of life coaching, right? Am I clear? Do you remember that? Yes. Okay, wonderful. So now today we will understand that during this entire life coaching program, end of the day, where once you complete your 9 months, how your performance will be measured. Okay, so you should know that what are the performance management system, the parameters we have in the performance management system. So that you should know, right? How your performance end of the day will be measured. That is what we are going to discuss in today's session. So that is what it is titled, that life skill coaching, my performance management system. Am I clear? Yes. Shall we move further? Yes. Fine. Next. So as I said, what are the objectives of the session? What you should know end of the session? You should know that performance management system for life coaching. Okay. You should also know what are the key performance indicators based on what your performance will be measured end of the day, right? Yes. And you should know what does it mean by life skills portfolio. So what is your life skill portfolio will be, that you should know. Am I clear? Yes. So end of the session, you should know that how your performance will be measured, what will be the parameters based on what your performance and change are measured, and also you should know that what is my life skill portfolio. Am I clear with these three objectives? Yes. Should I move further? Yes. Oh, wow, wonderful. So next slide. Okay. So now as we talked about the performance management system, you can see on the screen, right? There are three, the key performance indicators. Yes. PMS is basically, they refer to the performance management system. This is a system created to measure the performance of an individual. Okay. So if I talk about the key performance indicators for you, so then you can see there are three key performance indicators are there. Can you see them? Yes. Can you read them for me? What are those three key performance indicators? Yes. Number 1, life skill validation score 40%. Yes. Yes. My life skill portfolio 40%. Correct. Management rating 20%. Correct. And तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? आपका परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा? हाँ. Yes. कैसे मेजर होगा मुझे बताइए आप, कैसे मेजर होगा? जैसे कि 100 है, ठीक है? 100, उसके बाद 40, ठीक है? 100, 40 और जो क्या बोलते उसको, इसके जो 100 है, 100 ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ. आपका परफॉर्मेंस है ना, वो 3 पैरामीटर्स पे मेजर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दिए आप देख सकते हैं. एक है लाइफ स्किल वैलिडेशन स्कोर. ठीक है, उसमें आप जो भी करोगे उसका 40% आपको मिलेगा, राइट? ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो लाइफ स्किल्स पोर्टफोलियो. ठीक है, माय लाइफ स्किल पोर्टफोलियो.
जिसके नीचे सारी चीजें लिखी हुई है, 4 चीजें लिखी हुई है, आर्टिफैक्ट्स, रिप्रोडक्शन, अनसॉलिसिटेड अटेस्टेशंस एंड पीडीपी। 4 चीजें नीचे आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसका हर एक का 10 पॉइंट है और टोटल मिला के उसका 40 पॉइंट्स है, ठीक है। माई लाइफ स्किल पोर्टफोलियो इज डॉक्यूमेंटेशन, पर्पसफुल डॉक्यूमेंटेशन, जो हम समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट जो रहेगा वो है मैनेजमेंट रेटिंग। मैनेजमेंट रेटिंग बेसिकली रेफर्स टू दी योर बिहेवियर ड्यूरिंग द लर्निंग। योर लाइफ कोच or any other authority or any coach auditor will rate you based on your behavior, your learning style or anything, right? How when you getting progress, how you have behaved with other your peers, your colleagues and your seniors. Okay, am I clear with this? That's a behavioral aspect. Okay, समझ में आ गया आपको? मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो हम पहला पैरामीटर देखेंगे, लाइफ स्किल वैलिडेशन स्कोर, ठीक है। तो उसमें से 40 है तो वो कैसे आएंगे वो हम देखेंगे, राइट। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। यस तो यहाँ पे लाइफ स्किल वैलिडेशन स्कोर सीट में आपका असेसमेंट होगा, हर चीज पे आपका वैलिडेशन होगा ना, आपको बताया था ना मैंने प्रोसेस में। तो वो जो वैलिडेशन है वो आपका असेसमेंट है, वो 10 पैरामीटर्स पे होगा, राइट। और इसमें यहाँ पे ये 10 पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, इंट्रापर्सनल स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स, बिजनेस बेसिक्स, आप बिजनेस के बारे में कितना जानते हो, बिजनेस कम्युनिकेशंस, टेलीफोन एटिकेट्स, ईमेल एटिकेट्स, सेल्स स्किल्स, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मीटिंग एटिकेट्स, उसके बारे में आप कितना जानते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, लाइक अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ, right? Then we are talking about employability skills, इंटरव्यू कैसे देना है, आप इंटरव्यू कैसे लेते हो, स्पिरिचुअल स्किल्स, स्पिरिचुअल स्किल्स का मतलब आपको पता है? नहीं, यर्निंग, मैंने कहा था ना, भगवान का साथ अपने पास हो उसका एहसास करना, राइट। देन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बनना, और लास्ट में क्या है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप स्किल्स। यस तो ये सब सीखने के बाद आप टीम को कैसे मैनेज करते हो, लीडरशिप कैसे करते हो। सो दिस आर द 10 पैरामीटर्स based on what your performance, you know, the assessment will be there, validation will be there, and those score will be recorded based on what you will get your life skill validation scores. Did you get this? Yes. Am I clear? Yes. इसमें से 100 में से जो भी पॉइंट आएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके 100 में से आते हैं 80 पॉइंट्स, yes. तो वहां पे हमें कितना लेना है, 100 में से 40 लेना है, मतलब उसका वेटेज 40% है ना, राइट। तो उसका या जैसे यहाँ पे 80 मार्क्स आए आपके, 80 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वहां पे जो 40 है उसके कितने परसेंट हम लेंगे, 80%, जितने भी आपका स्कोर आएगा वो 32। yes. Did you get this? Yes. Am I clear? Yes or no? Yes. है ना, तो उस हिसाब से आपका वैलिडेशन यहाँ से वहां पे स्कोर लिया जाएगा। गो बैक टू द लास्ट स्लाइड। तो यहाँ पे 40 में से आपको कितना मिलेगा, 32। Okay. समझ में आ गया आपको? हाँ. आप जितना स्कोर करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे उसका वेटेज लिया जाएगा 40% के हिसाब से। Am I clear with this? Yes. Okay. Shall we go further? Next slide. Yes. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये समझ में आ गया 10 पैरामीटर्स? Yes. ठीक है, चलिए अब देखते हैं माय लाइफ स्किल। या टेल मी। हमारी बैटरी का चार्जिंग लगाई हो 2 मिनट। yes please you put the charging. Okay. Sure, please
Okay, are you done? Are you comfortable? Yes. Huh? Wonderful. Can we start? Yes. Okay. So now here you can say that now second parameter was my life skill portfolio. Yes. वो क्या है? एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, कलेक्शन है. ठीक है. आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है जो कि आपका पर्पसफुल कलेक्शन रहेगा. पर्पसफुल कलेक्शन मतलब आप जब मैंने बताया था ना पहले ही, वो बिजनेस प्रोजेक्ट बनाता है तो उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है. Yes. फिर उसके ऊपर बैंक मैनेजर का भी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ जाता है. राइट. यस. सो हाउ डिड इट वर्क? क्योंकि उनका खुद का कॉन्फिडेंस था, उन्होंने खुद काम किया था, पर्पसफुल कलेक्शन किया था. राइट. दैट शोज हिज एफर्ट, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, इजंट इट? है ना. वो क्या बताता है? उसका एफर्ट बताता है, उसकी मेहनत बताता है. वो बताता है कि उसने प्रोग्रेस क्या किया, पहले कैसे थे, अभी कैसे हो गए. राइट. और वो उनके अचीवमेंट दिखाता है. राइट. तो हमने पहले ही जैसे सीखा था, वी लर्न इन लास्ट टू लास्ट सेशन दैट लाइफ, this is a motivation. We have to do everything, we have to balance our life with during the day to keep ourselves motivated. We have to dream, right? Isn't it? So we have to make a portfolio, a purposeful collection of documents and the things that will show your achievement, progress and your effort. Am I clear? Okay. And it will serve you with the confidence. Okay. Fine. Shall we go to the next slide? Yes. Okay, next slide. Now here you can see that life skill portfolio is both. One is a working portfolio. Working portfolio means whenever you are into session and when you are practicing something, you are given the task. So you have to make the proof of it. Right? Is it clear? Yes. क्या समझ में आया? कब करना है ये काम आपको? ये चीजें कब बनानी है आपको? हमें जब इसमें से भेजा जाएगा, दिया जाएगा तब. और सेशन चालू हो तब. नोट्स कब बनाओगे आप? सेशन चालू हो तब. हाँ, नोट्स बनाना, फिर जब प्रैक्टिस किया. ठीक है. वो बहुत सारी चीजें है, तो मैं अभी बताऊंगा कि उसमें से आपको क्या क्या कलेक्ट करना है. और दूसरी चीज कौन सी है? आपका डेवलपमेंट पोर्टफोलियो. जो टास्क आपको घर पे दिया जाएगा करने के लिए, ठीक है, जो आप घर पे जाके करोगे, बनाओगे, वो सब चीजें यहाँ पे कलेक्ट करनी है, जो आपकी प्रोग्रेस दिखाएगा, आपका बदलाव दिखाएगा. सो लाइफ स्किल थीम के अंदर जैसे जैसे है वैसे वैसे आपको करते जाना. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर देव? यस. फाइन. शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? अब देखते हैं हमें बनाना क्या क्या है. ठीक है. तो हमने उसमें देखा था ना, मैंने कहा था वहां पे 4 चीजें नीचे लिखी थी. यस. कौन कौन सी 4 चीजें थी? आर्टिफैक्ट्स, रिप्रोडक्शन, अनसॉलिसिटेड अटेस्टेशन, यस, एंड पीडीपी, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान. ये 4 चीजें आपको सबमिट करनी है. राइट. और हर एक के कितने पॉइंट है? क्या उसका पॉइंट ना इसका? हर एक के कितने पॉइंट्स है? आर्टिफैक्ट्स के कितने पॉइंट मिलेंगे आपको? 10 पॉइंट्स. बाजू में लिखा है ना? यस. है ना. तो ये क्या चीजें हैं, पहले देखते हैं कि आर्टिफैक्ट्स क्या है. ठीक है. तो आपको जब आपका ट्रेनिंग होगा, लर्निंग सेशन होगा, तब आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, प्री असाइनमेंट, पोस्ट असाइनमेंट आपको जो दिए जाएंगे, अलग अलग फॉर्मेट, क्वेश्चनर आपको बनाने के लिए दी जाएगी, आपको प्रोजेक्ट जो बनाने के लिए दिए जाएंगे. ठीक है. जो काम दिया जाएगा वो आप कैसे करते हो, और दूसरा वो आप कितने अच्छे तरीके से करते हो. सेशन की नोट्स कैसे अच्छे तरीके से बनाई है आपने, क्या समझे हो, दैट इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स. और उसके कितने मार्क्स है? कितने पॉइंट्स है? 10. ओके. ठीक है. गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए. चेकलिस्ट. चेकलिस्ट क्या है आपको पता है? एक चीजें जो आपको कोई भी थियरी या कुछ भी सीखने से पहले आपको चेक करना है कि आपको आता है कि नहीं आता है, या कितना आता है. राइट.
फिर जब आप थियरी सीखेंगे या कुछ सीखेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को सेल्फ रेटिंग देंगे कि मैंने कितना सीखा, मेरे में कितना बदलाव आया। तो आप ये हर थियरी पे करेंगे, एंड में भी करेंगे। तो इन सब का आपको क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है। आपने किया है ऐसा पहले कभी? देखा है? आपको पता है चेकलिस्ट कैसा होता है? नहीं। नहीं देखा है? उसमें वो पॉइंट लिखना होता है, ओके, वेल डन, डन। हाँ वो देखा है, हाँ वो देखा है। देखा है आपने कैसा होता है उसमें? देखा है ना? आपने पढ़ा नहीं हाँ, पढ़ा, क्या बोलने का होता है उसमें? अगर नहीं पढ़ा हो तो लास्ट वाला करने का। हाँ, अच्छे तरीके से पढ़ा हो तो वेरी वेल डन। वेल डन। आपने कैसा किया, खुद को रेटिंग देनी है ना? तो आपने देखा है ना वो चेकलिस्ट? यस। तो हर सेशन पे, हर थियरीज पे आपको ये चेकलिस्ट बनाना है और आपको इसको सबमिट करना होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्ट इफेक्ट्स। ओके। समझ में आया? यस। आर्ट इफेक्ट समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा? कोई क्वेश्चन है? आपको जो आर्ट ऑफ असाइनमेंट दिए जाएंगे, हाँ, जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, प्री असाइनमेंट, पोस्ट असाइनमेंट जो भी होंगे, जो आप सबमिट करेंगे, आपका जो यस। चेकलिस्ट है, राइट, लाइफ स्किल का, जो आपकी यस। वर्कबुक में है, वो वर्कबुक को आप कितने अच्छे तरीके से भरते हो, आप कितनी अच्छी खुद की नोट्स बनाते हो, ये सब चीजों पे आपको पॉइंट मिलेंगे 10 में से। सो दिस विल बी योर आर्ट इफेक्ट्स। इज इट क्लियर? यस। समझ में आ गया देव आपको बराबर? मैं आगे चलूं देव अब? यस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद क्या था? रिप्रोडक्शन, है ना? यस। तो अभी रिप्रोडक्शन क्या होता है आप ये समझ लीजिए। जब आप इवेंट कर रहे हो, जैसे हम लोग अभी ये क्लास कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपके लिए ये इवेंट एक ही बार होगी, राइट? ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, उसके फोटोग्राफ्स, फिर उसके वीडियोस, उसकी सारी चीजें आपको कैप्चर करनी है, क्योंकि वो दोबारा नहीं होंगी। यस, एक ही बार। हाँ, तो लाइफ स्किल के जो सेशंस है आपके, आप उसमें जो सीखे, आपने जो प्रैक्टिस किया, वो सारी चीजें, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, है ना, जो सेशन के दौरान होती है, विजुअल चीजें, जो आपके ऑडियो है आप रिकॉर्ड करोगे, वो सब चीजें आपको स्टोर करनी है, खुद की खुद ही स्टोर करनी है, कोई और नहीं करेगा। यस। तो ये सारी चीजें, जैसे आप टेलीकॉलिंग की प्रैक्टिस की तो उसका आपको स्टोर करना है, टेली सेल्स किया, राइट, या टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया, वीडियो इंटरव्यू, ये सब जो देंगे वो आपको अपना कलेक्शन बनाना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया आपको? रिप्रोडक्शन दूसरा पार्ट समझ में आ गया? यस और नो? क्या है रिप्रोडक्शन, आप मुझे बताएंगे एक बार? रिप्रोडक्शन एक इवेंट है, उसमें हमको सब अपने एक जो चला है तो फिर से नहीं आ सकता, कुछ भी किया तो कैप्चर करो उसको, फिर याद रख लिया उसको सब। वीडियो, फोटोग्राफ्स एंड ऑडियो, जैसे मैंने बताया ना, इंटरव्यू आपने कभी दिया, इंट्रोडक्शन आपका कभी दिया है आपने, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे ना, यस। तो आपको समझ में आएगा ना कि आप अपना कैसा इंट्रोडक्शन दे रहे हो। फिर आप सीखने के बाद फिर से इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप में क्या बदलाव आया। तो वीडियोस में आपको सब कैप्चर करना पड़ेगा ना, वीडियोस, ऑडियोस, राइट? सो ये सब हो गया आपका रिप्रोडक्शन। क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। समझ में आया रिप्रोडक्शन मतलब? हाँ। इंटरव्यू हो गया आपका, या आपका वीडियो इंट्रोडक्शन का, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी, हाँ, प्रेजेंटेशन, ये सब होगा ना जो आपका, सब आपको रिकॉर्ड करना है अपने लिए। ठीक है, राइट? शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? रिप्रोडक्शन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब क्या है अनसॉलिसिटेड अटेस्टेशंस? मतलब क्या होता है अनसॉलिसिटेड? अनसॉलिसिटेड अटेस्टेशन का मतलब होता है, अनसॉलिसिटेड मतलब हमने मांगा नहीं है किसी से, अटेस्टेशन मतलब हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट, फीडबैक, कुछ भी जो हमारे कोच देते हैं, हमारे कलीग्स देते हैं, पीयर्स देते हैं, अच्छी चीजें, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं अनसॉलिसिटेड, यस, अनसॉलिसिटेड अटेस्टेशन। अनसॉलिसिटेड अटेस्टेशन। हाँ, मतलब आपके सेशन के दौरान किसी ने कहा कि देव आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो,
आपके कोच ने कहा देव आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप में ये Yes. क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, तो उस पे एक Yes. आप लिखवा लो और उस पे एक स्माइली लिख करवा लो, या फिर किसी ने Yes. व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या कहीं, मतलब जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसके दौरान कोई कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है, आपके Yes. ग्रुप में आया, यहाँ पे Yes. आया, तो उसको आप कैप्चर कर लीजिए। Yes. इज इट क्लियर? Yes. समझ में आ गया? अनसॉलिसिटेड अटेस्टेशंस का मतलब फीडबैक एंड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द पीपल, कोच, आपके पीयर्स, वो सब आपको कैप्चर करना है। शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे आपको एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाना है खुद का। दिस विल बी Yes. अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ स्किल पोर्टफोलियो। अगर ये नहीं होगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए है, जिसके अंदर Yes. आपको स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। आप पढ़ सकते हैं स्मार्ट गोल का मतलब क्या क्या है? Yes. Specific. स्पेसिफिक, फिर अपने समझ नहीं आ रहा है मुझे आगे का। मेजरेबल, Measurable. Okay. फिर अटेनेबल, फिर रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड गोल्स, है ना, इसको स्मार्ट गोल बोलते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक चीज है, जैसे आपको 9 महीने के लिए यहाँ पे बुलाया है, तो हम लोग 9 महीने में आपको क्या सिखाएंगे, क्या आप सीखोगे, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो स्पेसिफिक है ना। Yes. फिर आपको उसका मेजरमेंट, मैंने अभी बता रहा हूं मैं आपको कि आपका परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा, राइट। अटेनेबल मतलब जिसको हम अटेन कर सकते हैं, वैसे होने चाहिए ना आपके गोल्स, Yes. है ना। मछली सोचेगी कि मैं उड़ती रहूं आसमान में, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। Yes. मछली को सोचना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वो समझना पड़ेगा और उस हिसाब से अपना काम करना पड़ेगा, करेक्ट। पानी में टच। रियल, हाँ, तो उसमें वो कुछ सोच सकती है ना ज्यादा। Yes. तो उसी तरीके से आप अपने रियलिस्टिक और टाइम बाउंड गोल बनाओ, गोल्स बनाएंगे आप, देन यू विल Yes. डेवलप योर साइको सोशियल स्किल, ठीक है। Yes. आप अपना नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, हैबिट, कॉम्पिटेंसीज, ये सब आप जो बढ़ाएंगे उसको आप डिस्प्ले करेंगे उसमें, ठीक है। और फिर आप अपनी समरी लिखेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस लिखोगे कि आप लाइफ डेवलपमेंट की लाइफ कोचिंग से पहले आप कैसे थे, ठीक है, और लाइफ कोचिंग सीखने के बाद आपने कितनी चीजें सीखी, आप में क्या बदलाव आया, वो सब आप लिखेंगे। Okay. वो एक समरी आप बनाएंगे Okay. कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका पहले 9 मंथ्स चैप्टर। में कितना बदलाव आया, आपने क्या क्या Yes. सीखा, आपको कैसा लगा, नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजें जानना, राइट। तो वो सब आप क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखेंगे। हाँ, और उसको बोलेंगे पर्सनल समरी। क्या बोलेंगे उसको? पर्सनल समरी। तो ये सारी चीजें आती है आपके पर्सनल डेवलपमेंट प्लान में। किसमें आती है? पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। करेक्ट। तो अभी आपको समझ में आ गया है 4 चीजें, कौन कौन सी 4 चीजें थी, हम एक बार रिपीट कर ले। हाँ, हाँ, एक हम थी आर्ट इफेक्ट। हाँ, आर्ट इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीजें, हम लोग चले जाए आर्ट इफेक्ट्स की स्लाइड पे। यस। कैन वी गो टू द फर्स्ट स्लाइड ऑन आर्ट इफेक्ट्स? यस। यस। हम्म हम्म ठीक है, क्या क्या होता है आर्ट इफेक्ट्स में, क्या क्या करना है आपको, आप बता दीजिए एक बार। आर्ट इफेक्ट्स में any piece of work, any piece of work product by participants as a नहीं, normal आप of। मुझे ऐसे ही बता दीजिए, उसको मत पढ़िए, वो तो आपको मिलेगा। आपने क्या समझा वो बता दीजिए मुझे, कि आपको क्या क्या यहाँ पे कलेक्ट करना है। जी यहाँ पे करना है क्या प्रोजेक्ट, सर्विस, रिपोर्ट सब। असाइनमेंट्स, लेटर, असाइनमेंट्स जो आपको डायग्राम। दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स जो दिए जाएंगे, फिर यस। सेशन के दरमियान जो नोट्स बनानी है, यस। ठीक है, समझ में आ गया। यस। और चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या है आपको पता है ना? चेकलिस्ट क्या है आपको पता है? आपकी आवाज शायद म्यूट हो चुकी है, देख लीजिएगा। ओके, चेकलिस्ट क्या है आपको पता है? यस। यस, नो, ओके, वेल डन वाला, यस। वो सबमिट करना है, ठीक है ना। फिर क्या आएगा दूसरे नंबर पे?
रिप्रोडक्शन। हाँ, रिप्रोडक्शन। चलो हम दूसरे नंबर की स्लाइड पे जाते हैं फिर। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम सब कैप्चर करके रखे अपना फोटो खुद का, ऑडियो वीडियो सब कुछ। हाँ, करेक्ट। ऑडियो वीडियो, अपने इंट्रोडक्शन का, अपने इंटरव्यू का, सब चीज होगा, कुछ भी राइट? कुछ भी। हाँ, तो दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। करेक्ट। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड। थर्ड क्या है? अनसॉलिसिटेड अटेस्टेशन। यस, तो उसका मतलब क्या होता है? कौन सी चीजें? उसका मतलब होता है कि बिहेवियर अपना कैसा है। उसकी कॉम्प्लीमेंट मिलेंगी जब कोच बोलेगा कि देव आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, देव इज डूइंग वेरी वेल, तो देव को जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है उसको कैप्चर करना। इज इट क्लियर? ठीक है। कोच से मिलती है या पीयर्स से मिलती है या समाज से मिलती है, पेरेंट्स से मिलेगी, तो मम्मी पापा को बोलने का कि आप इसमें स्माइली करके, नहीं टीचर वो देते थे आपको स्टार और स्माइली, यस यस आपको देते थे ना, तो वैसे ही आपको पेरेंट्स से, आपके फ्रेंड्स से, ब्रदर्स सिस्टर से, सबसे कलेक्ट करना है ना। चलो, शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस। नेक्स्ट स्लाइड। और इसके बाद क्या है ये? पीडीपी, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। उसमें क्या क्या करना है? स्मार्ट गोल्स। पहले तो गोल्स बनाने हैं आपके, आपको अपने, है ना, खुद को समझना है, खुद के नॉलेज, खुद की एबिलिटी, स्किल्स, हैबिट को पहले असेस करेंगे, आप समझेंगे, फिर हमारे गोल के हिसाब से हमें उसको क्या क्या कमाना है, क्या करना है, वो सब करना है। और लास्ट में हमें अपनी समरी देनी है कि भाई 9 मंथ्स में मैंने क्या सीखा, मेरे में क्या बदलाव आया, पहले मैं कैसा था, ये सब काम करने से अभी मेरी कैपेबिलिटीज और कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, मेरी साइको सोशल स्किल्स कैसी बनी खुद की, हाउ डिड आई डेवलप माई ओन साइको सोशल स्किल। यस। सो दिस यू आर गोइंग टू आंसर योर ओन, क्योंकि डेवलप किसको होना है? खुद को। तो फिर लिखेगा कौन मैं डेवलप हुआ कि नहीं, वो बताएगा कौन? खुद। यस। तो आपको यहाँ पे ये करना है। आपको ये समझ में आ गया? यस। अगर ये नहीं होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये आपका मेजर प्रोजेक्ट है। तो पूरा। हाँ, तो अभी आपको सारे के सारे पैरामीटर समझ में आ गए। यस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, हम उस पे चले जाते हैं, वो स्लाइड पे, पीएमएस वाले स्लाइड पे चले जाए आप। यस। देखो यहाँ पे एक लास्ट में, हाँ मैं वो बाद में दिखाता हूँ, चलो लास्ट स्लाइड बाद में दिखाऊंगा, लास्ट स्लाइड बाद में, पहले पीएमएस पे चले जाए। हाँ, अब पूरा समझ में आ गया आपको? आपका यस। लाइफ स्किल वैलिडेशन स्कोर क्या है, कितने पैरामीटर्स पे है? वैलिडेशन उसमें स्कोर का है 40 पॉइंट्स, माय लाइफ स्किल पोर्टफोलियो का है 40 पॉइंट्स, मैनेजमेंट रेटिंग का है 20 पॉइंट्स और टोटल मिला के होगा 100 पॉइंट्स। करेक्ट। उसमें से आपका परफॉर्मेंस मेजर होगा। लाइफ स्किल वैलिडेशन स्कोर में आपके 10 पैरामीटर्स है, जिसमें आपका वैलिडेशन होगा, जो कोच करेंगे वो जो मार्क्स देंगे वो काउंट होंगे यहाँ पे, राइट? उसका जो भी स्कोर आएगा। माय लाइफ स्किल पोर्टफोलियो में 4 चीजें आपको बनानी है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन और वो सब कलेक्ट करना है, और वो आपने देख लिया कौन कौन सी चीजें है, और हर एक का 10 पॉइंट्स है। एक आर्टिफैक्ट्स, बता दो, एक बार रिप्रोडक्शन, हाँ बता ये दीजिए बताओ। आप, बिल्कुल। आर्टिफैक्ट्स, रिप्रोडक्शन, उसके बाद है अनसॉलिसिटेड अटेस्टेशन, और यस, लास्ट में है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान मींस पीडीपी। करेक्ट। सो आपको समझ में आ गया आपका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका यस। परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा ये। यस। आपको कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। ओके, सो वी विल गो टू द लास्ट स्लाइड नाउ, ठीक है, हम आखिरी स्लाइड पे जाएंगे। यस। वहां पे आपके लिए कुछ मैसेज है, देखते हैं क्या है, पढ़िए। Winning is not every, but wanting to win is everything. Go ahead. Better, best of luck. हाँ, क्या कहना चाहता है? जीतना सब कुछ Winning, नहीं है। yes, तो गोल्स बनाएंगे हम, उस पर काम करेंगे, इसका मतलब नहीं है कि हम उसको अचीव ही कर लेंगे या हम जीत ही जाएंगे, yes, ठीक है, वो yes. तो कुदरत ने लिखा होगा, तो वक्त आएगा तो हो ही जाएगा, तो अपने आप राइट? भी हो जाएगा।
Yes, if Almighty has already planned in a desire, then it will automatically it will happen, and we will be able to understand and match up the time that what God Yes. wants for us and what do we Yes. want for us. So both will match, right? लेकिन हमें जीतना नहीं है, जीतने की जिद नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, Ahead जाना जीतने है, की, आगे। हाँ, जीतने की कोशिश करनी है. सो ट्राई इज Also that एवरीथिंग. जीतना सब कुछ नहीं होता, कोशिश करना होता है. try but don't try. यस, इसीलिए वो कहते हैं ना, खुद से ही खुद को जीतने की जिद है मेरी, खुद से ही खुद को हराना है, मुझे खुद से ही खुद को जीतने की जिद है मेरी, खुद से ही खुद को हराना है, मैं दुनिया की भीड़ नहीं, मेरे अंदर एक जमाना है. Right? So with this note, thank you so much, Dev. You have been a very good Yes. candidate. See you into Yes, the sir. next session of our live coaching. Wish you all the very best and have a great day. Take care. Okay.